Okay, the first we saw events. Then there is a concept of event listener. There is concept of event listener. What is this? Let me show you. We can add event handler code to an on click event. इसको मैं आपको first of all look at this example that we are with the add event listener. Here it is the kind of event that is click event. It is not on click. The on click event on we do not add the keyword on. We only write click. It is the same event that is click event, but with the previous example we saw on click. But here once we use the keyword add event listener, what we do, we first para argument is the type of event. It is click, not on click. Just remember, it will be click, not on click. And it is same event. And then the function which you want to call, and you can write the function body of the function right into the event listener. इसके अंदर ही फंक्शन की बॉडी भी लिख दी है. फंक्शन कॉल करें एंड इट इज गोइंग टू गिव एन अलर्ट. फॉर एग्जांपल ये मैं क्लिक करता हूँ तो ये अलर्ट आ गया, हेलो वर्ल्ड. क्यों आ गया? क्योंकि ये बटन है और यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट में हमने लिखा गेट एलिमेंट आईडी माय बटन. तो माय बटन से क्या होगा कि इसको बटन मिल जाएगा. उस बटन को साथ अटैच करने लगे हम इवेंट लिसनर. और इवेंट लिसनर में हमने कौन सा इवेंट हमने कैप्चर करना है, दैट इज क्लिक. एंड ऑन कैप्चरिंग दिस इवेंट वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस फंक्शन बॉडी. So this is how it works. Let's see another example. ये देखें, ये बटन है with ID my button. Here once we write document dot get element by ID my button, so my button, this button is going to be returned, and with this button we are going to attach an event listener with a click and a function call. And here the function is separate, not part of the body. So the same example with two different syntaxes. It is only function call, body is separate. Let's see another example. We can add many event handlers to the same element. मतलब क्या हुआ, एक ही बटन के साथ एक से ज़्यादा इवेंट हैंडलर इवेंट लिसनर लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज अ बटन. इस बटन के साथ एक मैंने पहला इवेंट लिसनर लगाया जिस पे मैं माय फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, और दूसरा मैंने क्लिक इवेंट पर ही
एक और इवेंट हैंडलर लगाया सम फंक्शन कॉल। इसका होगा क्या, जब हम क्लिक करेंगे तो दो फंक्शन कॉल होंगे। एक पहले इवेंट लिस्टनर की वजह से माई फंक्शन भी कॉल होगा और साथ ही साथ दूसरे इवेंट की वजह से दूसरा फंक्शन भी कॉल होगा, लेकिन पहले माई फंक्शन कॉल होगा और बाद में सम अदर फंक्शन वाला इवेंट कॉल होगा ऑन द सेम क्लिक। ये देखिए मैं डेमो देता हूँ। ये मैंने एक बटन दबाया, फर्स्ट फंक्शन इज कॉल्ड हेलो वर्ल्ड, इट इज माई फंक्शन पहला वाला। मैं जैसे ही ओके करूंगा तो ये अब दूसरा फंक्शन कॉल हो गया क्योंकि सीक्वेंस में कॉल हो रहे हैं। अब दूसरा फंक्शन कॉल हो गया, दिस फंक्शन विल आल्सो बी एग्जीक्यूटेड। सिंगल क्लिक पे दोनों इवेंट लिसनर कॉल हो रहे हैं वन बाय वन। इट मीन्स दैट यू कैन असाइन मल्टीपल इवेंट लिसनर to any particular HTML element. Any question on this demo? So this is the concept given in this section. डेमो दे दिया मैंने आपको। इसी तरह आप इवेंट लिस्टनर को रिमूव भी कर सकते हैं। आप एलिमेंट का नाम देंगे, आगे लिखेंगे रिमूव इवेंट लिस्टनर। तो ये इवेंट लिस्टनर माउस रिमूव माउस मूव वाला जो है उसको ये रिमूव करने के लिए। The remove event listener method removes event handler that have been attached with add event listener. ये काम भी हो सकता है। And few more examples you can have a self study. Okay, the next section is HTML DOM navigation. With HTML DOM you can navigate the node tree using node relationships. अच्छा, अब इसमें कुछ specific, for example this is a structure we discussed in our initial slides, the same structure. Now there is a concept of parent, child, sibling, then top node, children, sibling. All these concepts are there which can be used to manipulate, move around, navigate the HTML document. So let's see a bit more detail on these terminologies. There is a root element HTML as you can see here. Then its first child is head element. This one. This head element is its first child and its second child is body. Here you can see it's a body. Now head element, the next sibling of head element is body because both are at same level. Sibling means children of same parents, and it's the previous sibling of body element is head element. It means that we can access the head element by uh, from first child and last child, and we can access the body element from head element by using next sibling, and from body to head element by using previous sibling methods. And from head, if we say parent node, we will reach to HTML node. So point is that we can navigate, move around in an HTML element with various methods as shown here. So these are some methods: parent node, child node, first child, last child, next sibling, previous sibling, that I have indicated you with a tree. Any confusion up till now? Okay, let's see first example. So here you can see that there is within a body
there is h1 tag and p tag. So here what we are doing from the document, we are saying get element by id id2 id2 ये वाला है, जो ब्लैंक वाला p है इसका कोई कंटेंट नहीं है। डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू, अब इसके अंदर क्या फिल करने जा रहे हैं हम h2 id2 में, get element id by id1 which is the top one, first child dot node वैल्यू। तो होगा क्या कि ये इसका जो h1 हेडिंग है, इसका जो फर्स्ट चाइल्ड है वो टेक्स्ट नोड है। ये पीछे आता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो h1 है, h1 का जो फर्स्ट चाइल्ड है वो ये वाला टेक्स्ट नोड है। एलिमेंट का जो अगला जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं वो it is not the my header is not the part of h1, rather my header is part of a child node of h1 and that child node is text, और text node के अंदर my header लिखा है। इसका मतलब है कि h1 से अगर हमने ये इसका कोई कंटेंट फेच करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ये id1 से तो ये वाला आ गया, h1 आ गया, अब हमने माई फर्स्ट पेज फेच करना है तो हम लिखेंगे फर्स्ट चाइल्ड, वो टेक्स्ट नोड में चला जाएगा। हम करेंगे नोड वैल्यू, ये माई फर्स्ट पेज पिक कर लेगा और ये माई फर्स्ट पेज पिक करके इसको id2 वाले को इस नीचे वाले p को साइन कर देगा एंड यू कैन सी दैट द माई फर्स्ट पेज इज ऑल्सो रिटर्न। ये कहाँ से, यहाँ से समझिए कॉपी पेस्ट हो गया, ऊपर वाले से कॉपी हुआ है और यहाँ पे आके पेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये इसमें ये इस तरह का, दिस हाउ इट वर्क्स। एक्सेसिंग द इनर HTML प्रॉपर्टी इज द सेम एज एक्सेसिंग नोड वैल्यू। तो यानी कि अगर हम ये लिखते हैं यहाँ पे गेट एलिमेंट आईडी डेमो डॉट इनर HTML वो लिख लें, या हम अल्टरनेटली लिख दें डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट नोड वैल्यू, तो सेम। तो आप समझ लें कि इनर HTML का टेक्स्ट आप फेच कर सकते हैं और उसको फेच कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। Accessing first child can also be done like this। आप फिर ये काम भी कर सकते हैं, क्या get element by id डॉट चाइल्ड नोड्स। अब चाइल्ड नोड इसके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पहला चाइल्ड नोड उठाना है आपने, विच इज फर्स्ट चाइल्ड। तो चाइल्ड नोड्स की पूरी एरे का 0th एलिमेंट उठाना है और फिर उसका नोड वैल्यू उठानी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट है। और साथ ही अगर इनर HTML लिखा हो, ये निकाल के हम डॉट इनर HTML लिख दें, अगेन इट इज सेम थिंग। Any question on this slide? सर जनाब, सर एक एलिमेंट की कितने चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं? बहुत सारे, जितने डालने चाहे डालें, लेकिन डिपेंड करता है एलिमेंट कौन सा ना। जैसे हमने डिव लिखा था, डिव के अंदर भी एक डिव डाल दिया था हमने, तो आप हिरारिकली जिसका मर्जी स्ट्रक्चर करते रहे उसको ना। लेकिन ये जो स्पेसिफिक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये मैं टेक्स्ट नोड की बता रहा हूँ कि अगर उसका टेक्स्ट उठाना है ना, किसी एलिमेंट का टेक्स्ट उठाना है, ये वो टेक्निक है उठाने की। क्या आप फर्स्ट चाइल्ड करेंगे और उसके बाद वैल्यू करेंगे तो टेक्स्ट उसको उठ के आ जाएगा, यानी इनर HTML का इक्विवेलेंट है ये, इनर HTML का। अदरवाइज उसके चाइल्ड तो मल्टीपल जितने मर्जी डालते हैं आप, डिव के अंदर डिव के अंदर h1 के अंदर जो भी डालते हैं वो चाइल्ड एलिमेंट्स डाल ही सकते हैं, चाइल्ड भी ऐसे ही फेच होंगे। ठीक है सर, अगर कोई उसके अंदर और एलिमेंट है उसका टेक्स्ट उठाना तो फिर हाँ, तो ये नंबर चेंज करेंगे, ये 0 1 2 3 4 करेंगे ना, ये 0 पहला उठेगा, उसके बाद 1 कर देंगे तो अगला उठ जाएगा, उससे करेंगे तो अगला उठ जाएगा। पॉइंट ये कि एक कलेक्शन बन जाएगी चाइल्ड्स की, उस कलेक्शन को आप अपने आइटरेट कर सकते हैं, कोई फॉर लूप लगा के या कोई भी आइटरेशन मेथड लगा के, या डायरेक्टली आपको पता है कौन सा वाला एलिमेंट है तो आप वैसे ही फेच कर सकते हैं।
तो जो टेक्स्ट नोड होता है वो पहले ही होता है। टेक्स्ट नोड के लिए आपने बगैर परेशानी के 0th एलिमेंट पिक कर लें तो टेक्स्ट पिक हो जाएगा। राइट सर। ठीक हो गया। ओके, डॉम रूट नोड। अच्छा, पूरे का पूरा रूट नोड भी उठा सकते हैं आप। देर आर टू स्पेशल properties that allow access to the full document, that is document.body and document.root element. इनमें क्या डिफरेंस है? अगर आप document.body प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो बॉडी के अंदर अंदर का जितना भी एलिमेंट्स है वो सारे उठ के आ जाएंगे आपके पास। वो सारे के सारे उठ के आ जाएंगे आपके पास, पूरी पूरी कलेक्शन आ जाएगी। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी अगर आप यूज़ करते हैं तो बॉडी का टैग नहीं शामिल होंगे, बॉडी के टैग नहीं होंगे, टैग एक्सक्लूसिव होंगे, टैग आउट होंगे। इसके अलावा जो उसके अलावा जितने टैग होंगे वो सारे फेच हो जाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी से। और ये दूसरा वाला है डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, ये HTML के टैग्स के अलावा बाकी सब कुछ उठा लेगा। HTML के एलिमेंट इसमें शामिल नहीं होंगे। अगर हेड आपने डाला हुआ तो हेड भी आ जाएगा, बॉडी जो पूरी डाली हुई है बॉडी के भी पूरे सारे के सारे टैग उठ के आ जाएंगे। ठीक है जी। अगेन दीज आर टू इम्पोर्टेंट मेथड्स which can be used for manipulating the documents, document.body and document.document element. Then there is another interesting property which is called node name. नोड नेम से आप ये कर सकते हैं, किसी भी टैग का नाम उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल H1 है तो आप H1 का, ये आपने H1 उठाया हुआ है, आएगा ऑल कैपिटल में आएगा रिप्लाई, लेकिन हेयर वी आर बेसिकली पिकिंग अप H1। कैसे पिक कर रहे हैं देखें आप, यहाँ पे हम लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID2 और ID2 ये नीचे वाला है इनर HTML, यानी इसके कंटेंट को फिल करने जा रहे हैं हम। इस कंटेंट को फिल कर रहे हैं हम, कैसे कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID1, ये ID1 वाला जो ये H1 है, और हम कह रहे हैं डॉट नोड वैल्यू, नोड नेम, सॉरी डॉट नोड नेम। तो नोड नेम इस नोड का, इस टैग का नाम है H1, तो ये नोड नेम रिटर्न हो गया H1। ठीक है जी। तो इस तरह से आप किसी भी नोड का नाम, उसका क्या टैग है उठा सकते हैं। Then there is also an important property that is called node type. Node type. Node type, for example यहाँ पे जब हम लिखते हैं, यही ID1 के लिए हम लिखते हैं डॉट नोड टाइप, तो ये रिटर्न करता है 1। ये नोड टाइप रिटर्न कर रहा है 1। अब ये 1 2 3 क्या चीज़ है, ये अगली स्लाइड में दिया हुआ है कि अगर तो ये किसी एलिमेंट का नोड है तो इट विल रिटर्न 1। इफ फॉर एग्जाम्पल H1 है ये, तो ये 1 रिटर्न करेगा। अगर ये किसी एट्रीब्यूट का नोड है, फॉर एग्जाम्पल क्लास इज इक्वल टू हेडिंग है, तो ये एट्रीब्यूट का नोड है तो ये 2 रिटर्न करेगा। अगर ये कोई टेक्स्ट नोड है लाइक दिस, ये वाला, तो ये रिटर्न करेगा 3। और अगर ये कमेंट है then return code will be 8, and if it is a document node that is HTML document itself, then it will return 9। और अगर ये डॉक्यूमेंट टाइप वाला नोड जो होता है, जो सबसे पहले लिखा होता है, वो रिटर्न करेगा तो उसकी डॉक्यूमेंट टाइप होगी 10। सो दीज आर फ्यू इम्पोर्टेंट टाइप्स। तो कोई कम्प्लेक्स मैनिपुलेशन करनी हो तो हमें कई दफ़ा टाइप्स पिक करनी पड़ जाती हैं। सो इट्स फॉर दैट पर्पस। एनी क्वेश्चन? चलें आगे चलते हैं। HTML DOM elements. Now there are few other methods. With these methods we can add and delete elements. For example, the examples are create element, remove child, append child, replace child, write। ये document write की मैंने आपको डेमो दिया हुआ।
तो ये करता है राइट इनटू HTML आउटपुट स्ट्रीम। HTML डॉक्यूमेंट में लिख देगा जो अब यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे। बाकी ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और ये नाम से ही पता है कि क्या करेंगे। ये पहला वाला एलिमेंट क्रिएट करेगा, दूसरा रिमूव करेगा, तीसरा अपेंड करेगा, यानी कि एग्जिस्टिंग को रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि एक एडिशनल ऐड कर देगा जो भी है। अगर 4 एलिमेंट्स है तो ये 5वां डाल देगा। और रिप्लेस क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को न्यू और ओल्ड दोनों स्पेसिफाई करेंगे तो ओल्ड को रिप्लेस कर देगा न्यू से। तो जस्ट वन और एग्जांपल फॉर दिस। अब लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग न्यू HTML एलिमेंट्स। कैसे क्रिएट करते हैं, दैट इज इंटरेस्टिंग। To add a new HTML to the HTML DOM, you must create element node first and then append it to the existing element. तो यहाँ पे देखें हम क्या कर रहे हैं, एक हम P टाइप एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं। पहली स्टेटमेंट, ये जो पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ क्रिएटिंग अ पैराग्राफ एलिमेंट, क्योंकि है ही नहीं, स्क्रैच से नहीं है। तो जब आप क्रिएट एलिमेंट करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा P टाइप एलिमेंट का, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा एंड इट विल बी सेव्ड इन पैरा, वेरिएबल पैरा। इसी तरह हम एक टेक्स्ट नोड क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट टेक्स्ट नोड, इसमें हमने टेक्स्ट डाल दिया तो एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और टेक्स्ट नोड का, एंड इट विल बी इन वेरिएबल नोड। अब हमने इस टेक्स्ट नोड को बनाना है चाइल्ड पैराग्राफ का, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पैरा डॉट अपेंड चाइल्ड नोड। तो ये पैरा है, पैरा का अपेंड चाइल्ड कॉल किया तो पैरा के अंदर हम चाइल्ड डालने लगे और चाइल्ड को डाल रहे हैं ये नोड वाला। सो दिस हाउ अ पैराग्राफ विल विद अ टेक्स्ट नोड विल बी क्रिएटेड। अब इस पैराग्राफ को भी हमने क्या करना है, हमने डिव के अंदर डालना है। ये डिव का टैग है, तो इसके अंदर ऑलरेडी 2 पैराग्राफ हैं, एक और पैराग्राफ इसमें हमने डालना है। तो हम अपेंड करेंगे तो तीसरे पैराग्राफ के नीचे, इन 2 पैराग्राफ के नीचे तीसरा पैराग्राफ क्रिएट होगा। So first of all, we are fetching the div1 element in a variable element, and then we are saying element dot append child para. So it will add third para at the bottom of div element. So I hope this example is clear. सर ये नहीं समझ आई सर। जी सर ये नहीं समझ आई सही। नहीं समझ आई मैडम। Let me find the demo. ये डेमो है। ये अब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है ना, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन वाले कॉन्सेप्ट्स है ना, कि ये पहली स्टेटमेंट जो आपकी क्या कर रही है, एक ऑब्जेक्ट बना रही है। ये ऑब्जेक्ट जिस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, क्रिएट एलिमेंट करेंगे तो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा P टाइप एलिमेंट का, ठीक हो गया। और वो किस वेरिएबल में आ जाएगा, पैरा में। फिर हम P के अंदर हम ये दिस इज न्यू टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं कि कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ये जो एक यहाँ हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिखा हुआ है P और दिस इज न्यू। सॉरी कहाँ लिख दिया, ये चाह रहे हैं कि एक P एलिमेंट क्रिएट हो और उसका टेक्स्ट हो दिस इज न्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हमने P एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है, ये जैसे है।
ये पी एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, ये बन गया पी एलिमेंट का ऑब्जेक्ट इस स्टेटमेंट से, और उसको सेव कर दिया वेरिएबल पैरा में। अब हमने टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट अलग से एक बनाया, फॉर एग्जांपल ये मैंने टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट बना दिया अलग से, दिस इज न्यू, इसको ला के मैंने सेव किया नोड के अंदर, ठीक हो गया। अब जब मैं ये पैराग्राफ लिखूंगा पैरा डॉट अपेंड चाइल्ड नोड, तो ये जो टेक्स्ट का नोड है ये यहाँ से उठेगा और यहाँ आगे डल जाएगा, उसके अंदर में अपेंड हो जाएगा, पैराग्राफ के अंदर उसका चाइल्ड बन जाएगा इस स्टेटमेंट से, ठीक है। अब जब ये P बन गया, अब इसको प्लेस करना है हमने डिव के अंदर, अभी ये डिव के अंदर नहीं है, ये भी समझे कि मेमोरी के अंदर, ये रैम के अंदर है, अभी डिव में प्लेस करना है हमने, अभी डिव में नहीं पड़ा हुआ। डिव में डालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डिव का एलिमेंट फैच करेंगे जिसके अंदर डालना है, तो ये मैं डिव का एलिमेंट, डिव 1 का एलिमेंट फैच कर रहा हूँ, ये आ जाएगा एलिमेंट वेरिएबल में। अब इसका जब मैं अपेंड चाइल्ड पैरा करूँगा, तो ये जो पैरा होगा जो मैंने बना के तैयार किया है अभी, ये आके इधर आके आखिरी डिव के आखिरी जो 2 P के बाद 3rd P ये बन जाएगा। दिस इज गोइंग टू हैपन with this code. I hope it's clear now. Yes sir. Okay, so we can similarly we can insert element before, क्योंकि append से क्या होता है, end पे डलता है, लेकिन अगर end पे नहीं डाला आपने, शुरू में डाला है, तो we can use the method insert before, और रिमूव भी कर सकते हैं इसी तरीके से। कोई एलिमेंट है उसको P1 को रिमूव करना है, तो आप पहले उसको रिमूव कर दें, ये P1 को रिमूव करना है हमने, ID by P1 ये रिमूव करना है, तो आप पहले पिक करें उसको P1 को और फिर उसको डॉट रिमूव कर दें तो रिमूव हो जाएगा। So few more examples you can see from here. Then ये याद रखें कि कलेक्शंस जो होती है ना, जैसे ही कोई मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं वो कलेक्शन बन जाती है उसकी। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट है, अगर इस किस्म की स्टेटमेंट है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम P and there are multiple P's, so what will happen, a collection of all the P's is going to be returned। जब एक कलेक्शन रिटर्न होगी तो वो X में सेव हो जाएगी। अब हमें पता है कि उस कलेक्शन के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो हम ये डॉट ज़ीरो इस सब ब्रैकेट में, जिस जो टिपिकल तरीका होता है एरेज को फैच करने का, 0 एलिमेंट 1 एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, इस तरीके से हम कलेक्शन के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको हम फैच कर सकते हैं। टिपिकल सी लाइक सिंटैक्स। इसी तरह लेंथ, अगर आपको नहीं पता कितने एलिमेंट्स आपने फैच किए हैं, 4 हैं 5 हैं 6 हैं कितने हैं, तो आप ये लेंथ वाला, फॉर एग्जाम्पल ये आपने P एलिमेंट के कलेक्शन रिटर्न हुई है, आ गई माई कलेक्शन में आ गई, अब देखना आपको पता नहीं है कि कितने रिटर्न हुआ है, तो आप माई कलेक्शन डॉट लेंथ से आप वो निकाल लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। और लेंथ नॉर्मली फॉर लूप में यूज़ हो रहा होता है, ये अगर आइट्रेशन करनी है तो डॉट लेंथ माई कलेक्शन डॉट लेंथ से आपको, क्योंकि अपर लिमिट मिल जाती है और उसमें आप आइट्रेशन कर सकते हैं स्पेशली फॉर लूप में। तो ये लेंथ वेरिएबल आप पूरी कलेक्शन की क्वांटिटी निकाल सकते हैं लेंथ डॉट लेंथ के साथ। फॉर एग्जांपल ये फॉर लूप की एग्जांपल है, I is equal to 0, I less than my collection dot length I plus plus, and we are changing the colors of the collected elements with style dot color. Okay, last section. लॉट्स, इसमें ये देखें कि क्यूरी सिलेक्टर ऑल, इसकी एग्जांपल पहले भी मैंने आपको दी है कि क्यूरी सिलेक्टर से हम क्या कर सकते हैं, with the node list object is a list of nodes extracted from document. All browser return node list object for the property child nodes. Most proper browser return node list object for method query selector all. तो ये एक मेथड है, it is called query selector all. तो जब आप query selector all करते हैं तो आपको node list object रिटर्न हो जाता है, और उसको वही जो कलेक्शन का तरीका होता है उसी तरीके से आप इसको
1 2 3 करके रिटर्न कर सकते हैं. सो इट इज एन एग्जांपल, अनदर एग्जांपल कि क्यूरी सिलेक्टर ऑल भी यूज किया जा सकता है फॉर रिटर्निंग द चाइल्ड नोड्स. ठीक है जी. तो उसी तरीके से डॉट लेंथ मेथड इसमें भी यूज होता है. दिस एंड्स टुडेस लेक्चर. तो बेसिकली मकसद ये था आज के लेक्चर का कि आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन बताई जाए कि किस किस तरीके से जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया जा सकता है. तो इट एंड्स टुडेस लेक्चर. कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं आप. एनी क्वेश्चन?